Yes. Good morning to all. Am I audible? Am I clearly audible? Okay, good. So, in the previous lecture, we have completed our minimization or minimization of grammar, elimination of null and reproduction, and we have also started about the normal forms, starting with the definition. So, why we required the normal form, or what is the definition of normal form? So, simply the normal form is uh, if we apply any restriction on any grammar, or in this case, we are just going to study context-free grammar. So we will say that if we apply restriction over context-free grammar, just a minute. Okay. Now voice is clear? Now voice is clear? Okay, good. So normal form is what? Normal form is nothing. It is just the restrictions that we are going to impose on any context-free grammar, right? So simple. Suppose a grammar is given to you, and now you are going to impose certain restrictions. Then we can say that particular grammar is in normal form. For example, just we can start with the example. So in this case, suppose a context-free grammar is given to you, that A to AB, this is the context-free grammar by the definition of Chomsky classification, because all the production rule in the form of A to alpha, where A belongs to Vn, that is the variable, and alpha belongs to variable union terminal whole S3, right? So that means in the right hand side, you can find any number of variable or any number of terminals along with the combination of variables and terminals. But here, so this is the simple representation or the rule for type 2 classification or context-free grammar. So suppose this is the simple production, it is under the category of type 2, that is the context-free grammar. Now, suppose any production is in this format, that is B, C, D, again it is a context-free grammar, or if we write any production in this form, that is CA, it is again a context-free grammar. So now we can find variety of context-free grammar production. So now, suppose I want to restrict that only the production that have a single terminal on right hand side, or only two variable on right hand side, right? Means suppose this is any production that is produced by A. So simply any production of the context-free grammar, just we are going to impose the restriction that on right hand side there must be a single terminal or only two variables, right? So this type of restriction, this type of restrictions are called the normal form. If we apply this type of restrictions on the grammar, then we will say definitely that grammar will be in normal form. So there are different types of normal forms available. Out of these, we will discuss these two normal form. First one is the Chomsky normal form, and another one is the Greivach normal form. Clear? So sound का कोई issue तो नहीं है? So in case of Chomsky normal form, the restriction is given to you that the context-free grammar is called in a context-free grammar is called in Chomsky normal form, that is C and F, if all the production are in the form of A to A or A to BC. So now we have to focus these 2 points, that what does it mean that A to A or A to BC. So simple, the meaning and the representation is on the right hand side, you just imposed the restriction that on the right hand side you have only the single terminal or two variables. Are you getting my point? So this is the restrictions. These are the restrictions that we apply on the context-free grammar. So after restriction, we say
after restriction, just we will find a grammar, right? Or you can say that the restricted grammar, then this grammar is said to be in a normal form. Why it is said to be a normal form? Because all the production of grammar will be in the same format. That's why we can say that now the grammar is in Chomsky normal form. Are you getting my point? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कोई भी प्रोडक्शन होगा जो टाइप 2 के प्रोडक्शन रूल को फॉलो करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अगर हम उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें, क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकता है? कुछ भी हो सकता है ना? लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन कौन डिसाइड करेगा? दैट इज डिसाइडेड बाय द गिवन नॉर्मल फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, राइट? So as per the Chomsky normal form, or as per the instructions of Chomsky normal form, or as per the rules of Chomsky normal form, we can convert all the production rule of context-free grammar into that required form. So what is the required form of Chomsky normal form? So simply the required form is, on the right hand side, there should be a single terminal or there should be only two variables. तो ये हमें क्या करना है कि हमारा जो भी प्रोडक्शन रूल होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, तो हमें करना क्या है? हमें राइट हैंड साइड में रिस्ट्रिक्ट करना है कि अगर हमारे टर्मिनल ज्यादा आ रहे हैं, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कोई वेरिएबल हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। तो नाउ द ऑब्जेक्टिव इज जस्ट वी हैव टू eliminate this type of production, or we will try to change its format. Means केवल सिंगल टर्मिनल होगा तो पॉसिबल है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, अदरवाइज दो टर्मिनल आ गए तो ये उसमें अलाउ नहीं होगा। सिमिलरली इफ एनी वेरिएबल इज डिफाइंड टू यू, इन दैट केस सपोज बी सी डी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लेंथ कितनी है? 3, और आपके पास कितनी लेंथ होगी? एग्जैक्ट 2, ना तो एक लेंथ का चाहिए ना 3 लेंथ का चाहिए। So in that case, you have to reduce the length of variable on right hand side, right? So this is the simple description about the Chomsky normal form. Now we will start with an example, and before going to start a real example, just I would like to discuss, I would like to elaborate the points or the steps that are used to convert a context-free grammar into Chomsky normal form. So first of all, we will try to find, we will try to check, you can say, that there is any unit or null production is there, right? If there is any unit or null production is there, then just in step 1, we will try to eliminate all these production. In step 2, just we will try, or step 2 or 3, both are the same, but one is associated with the variables and another one is associated with the terminal. This is only the difference between step 2 and step 3. So no problem at all. You can do step 3 first and step 2 first, or step 2 first and step 3 uske baad kar sakte, right? So the first point is, if there is any terminal or any unit production is there, then first we should eliminate such type of production. दिस इज क्लियर? तो जो हमने अभी तक पढ़ा उसको हमारा स्टेप 1 में हमें करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? एंड सेकंड पॉइंट इज एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल मींस if suppose because in the Chomsky normal form, as we know, only single terminal is permitted. So if more than if there are lot of terminals on the right hand side, so in this case we have to terminate these, we have to eliminate these terminals, because these terminals are not allowed in case of Chomsky normal form. Third point is the important point. Suppose restriction the number of variable, means if suppose any production is given to you, as I already discussed with you just few seconds before. So in this case you can see here, suppose these are the variables A, B, C, and the length of variable is 3, because on right hand side you can find 3 variables, right? So as per the Chomsky as per the Chomsky normal form, it is restricted that on right hand side only length of 2 variables
right? Yeah, or you can say variable of length 2 is permitted, but here the length is 3. So just we have to restrict the number of variable, right? So इसके लिए हम लोग कुछ अलग टेक्निक यूज करेंगे कि इसको हम कोई एक वेरिएबल मान लेंगे, सपोज अपनी तरफ से C1, so that we can represent this A to AC1. तो देखिए आप, ये हमारा क्या हो गया, ये C1 हमारा, हमने C1 अलग नहीं है, C1 एक वेरिएबल का नाम दे दिया, जस्ट हमने इसको रीनेम कर दिया, ऐसे कह सकते हो आप. सो हियर यू कैन से कि ये हमारा दो वेरिएबल हो गए, टर्मिनल कन्वर्ट हो गया, और इधर C1 आपने किसको माना था, BC को. तो BC अगेन कैसा हो गया हमारा, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, बिकॉज इट्स लेंथ इज 2. सो इन केस ऑफ वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड हैविंग हाई लेंथ, राइट, then we will try to restrict the length of the variable or the number of variable on the right hand side. So now we will see that how can we perform the restriction of the number of variable on right hand side, or how can we eliminate the terminals from right hand side. So for doing these steps, just we are going to the real example. Now इसके बाद में फिर आपको कुछ एक थ्योरम दिखाऊंगा, इसका क्या है, थ्योरी की इसमें कोई जरूरत नहीं है, जस्ट अगर आपको इसका प्रोसेस समझ में आ गया तो ब्रॉडली इफ आई वांट टू कन्वे द मैसेज ऑफ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, सो द पॉइंट, देयर आर 3 ब्रॉड पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज टू चेक whether there is any unit or null production is there. If yes, then try to remove it, right? Second point is just check the length of the variable on the right hand side or the terminal. If more than the decided length is there, then just we will try to manage. So how can we manage? Just this is the real example or the first question. तो बहुत केयरफुली इसको देखिए, और एक क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ गया, ये कभी गलत नहीं होगा, राइट? और अगर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, कि अगर हमने इसमें कोई भी प्रोडक्शन रूल छूट गया हमसे, कहीं रह गया, मिस हो गया, हम लोग नहीं लिख पाए, तो हमारा सारा जो मेहनत है वो बेकार होगा. क्योंकि अगर कोई भी हमारा एक भी अगर हमारा प्रोडक्शन रूल छूटा, दैट मीन्स कोई ना कोई आपने ट्रांजिशन फंक्शन मिस कर दिया. और अगर किसी भी डायग्राम में किसी भी मशीन का ट्रांजिशन फंक्शन मिस हुआ, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ दैट मशीन इज इनकरेक्ट. So just do the same thing very carefully. So just suppose this is the given question. मैं इसको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप में से किसी का गलत नहीं, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मेरे से एक बार पूछ सकते हैं. Before going to start a numerical problem, if you feel any confusion, doubt, then please let me know. वॉइस कम तो नहीं आ रही बेटा? गुड. तो कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, आप पूछिए फटाफट, सो दैट आई कैन स्टार्ट द रियल प्रॉब्लम. नो डाउट? दीक्षा, एनी डाउट? राखी? Okay, good, very good. So should I start numerical problem? Okay, good. Thank you, Unnati, Roshni, Rakhi. So now the given problem means a grammar is given to us, or by default that grammar will be the context free grammar, that is type 2 grammar. Okay, so just see the grammar, or in this grammar you can see F to AAD is a production, A to AB slash BAB is a production, B to B is a production, and D to D is a production. So these productions are given to us for converting into the Chomsky normal form. So total number of productions are, how many productions are there? Can you count it? One is this one, 2, 3, 4, and 5. Total number of productions are 5. So just we will start with step 1. So in step 1, we will check that there is any unit or null production is there. Just try to check. The D to D terminal hai, this is terminal, this is the terminal, no unit production, no terminal.
So in this, in the given grammar, there is no null or no unit production. So no need to follow step 1. Means not required to remove or eliminate the unit production or null production. Is it clear? Very good. Okay. So now we will proceed step 2 directly. Okay. So now how can we write all these things? तो सिंपली अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमारा फॉर्म क्या है ये हमें पता होना चाहिए कि चौमस्की की रिक्वायर्ड फॉर्म क्या है. इट इज आइदर ए टर्मिनल ऑन द राइट हैंड साइड और टू वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड. केवल यही है, इसके अलावा कुछ नहीं. इसमें आप अपना दिमाग मत लगाना कि सर अगर एक हो तो क्या हो, एक हो तो क्या हो जाएगा यूनिट. दैट इज नॉट अलाउड. ओनली स्ट्रिक्टली इट इज डिसाइडेड दैट टू वेरिएबल्स मस्ट बी देयर. और टर्मिनल के केस में क्या होगा, ओनली सिंगल टर्मिनल विल बी देयर, राइट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ Chomsky normal form. So if we compare all the given production with the required form, then we can find here that this is the single terminal here. It should be allowed, and D to D it should be allowed. So these two productions are already in the Chomsky normal form. Simply. So now we have to apply. We have to restrict the length of these three production rules. तो देखिए पहला देखो, इसमें क्या अकेला टर्मिनल होता तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है. यहाँ टर्मिनल अकेला होता तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन इसके साथ एक वेरिएबल है ना. तो ऑल दीज थ्री प्रोडक्शंस आर नॉट इन चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म. So just we will start to convert this. So just write step 2 and with the production rule number 1. So you see here S to AD is given to you. S to AD give rise to means just you are going to convert the given production rule to another form. Are you getting my point? हम यहाँ पर give rise to का मतलब क्या है कि इस प्रोडक्शन जो आपने दिया था that is converted into this format. So in place of A, just I am taking a constant that is CA. एक वेरिएबल हमने ले लिया CA के नाम से. आप जब कॉपी में लिखेंगे तो इसको इस तरीके से लिखें, राइट. तो जस्ट CA क्यों लिया, आपका ये डाउट आ सकता है. In place of CA, can we take any other name of any other name? Yes, of course. But CA लेने का फायदा ये है कि ये हमारे ब्रेन में याद रहेगा, हम लोगों को याद रहेगा कि हमने A को रिप्लेस किससे किया है, CA से. क्योंकि लास्ट में हमें सारे वेरिएबल के नाम लिखने पड़ेंगे और टर्मिनल भी लिखने पड़ेंगे और इन प्रोडक्शन को भी लिखना पड़ेगा. सो दैट वी शुड टेक एन इजी नेम. पहले CA, CB, CC, CD इस तरीके से. और अगर हमें इन दोनों को भी कंबाइन करके लेना पड़ेगा तो C1, C2, C3 इस तरीके, राइट. तो हम इस तरीके का नाम लें जिससे हम लोगों को आसानी हो. सो जस्ट सी हियर दिस SAD give rise to S to CAAD, right? Where CA is what? CA belongs to CA. CA will produce you A. Are you getting this point? तो CA क्या प्रोड्यूस करेगा आपको, A. तो देखिए हमें क्या करना है, जो भी प्रोडक्शन हमारे होंगे, हमारे सारे प्रोडक्शन CNF में कन्वर्ट करने होंगे हम लोगों को. तो यहाँ पर देखो CA to A, ये वाला तो ऑलरेडी CNF में हो गया. क्यों? बिकॉज इट इज ऑन द राइट हैंड साइड, देयर इज ओनली सिंगल टर्मिनल. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपने इसको कन्वर्ट तो कर लिया. तो अगर आप देखो इसको तो ये अभी भी पूरी तरीके से CNF में नहीं है. बिकॉज हियर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 3. किसी भी 4 तो नहीं दिख रहे हैं. CA 1 है, एक A है, एक B है. तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 3. बट एज पर द चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी 2. सो नाउ वी विल रिस्ट्रिक्ट द लेंथ ऑफ वेरिएबल. लेकिन इस केस में हमने कौन सा स्टेप यूज किया है, एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल. सो द प्रीवियस, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको स्टेप को दिखाता हूँ. मैंने जो आपको समझाया था एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल. तो ये सेकंड स्टेप हम लोगों ने क्या फॉलो किया कि जो टर्मिनल था उसको हमने एलिमिनेट कर दिया. किससे एलिमिनेट कर दिया, CA के साथ, राइट. तो अब हमारा ये टर्मिनल हट गया, एलिमिनेट हो गया. बट हमारे पास क्या हुआ, वेरिएबल आ गया. तो नाउ वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द लेंथ ऑफ दिस वेरिएबल. तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे. क्लियर. तो अब हमारा S to AD की जगह नाउ वी विल यूज S to CAAD और CA to A. Clear? And another production is A to AB. So now here in this step we are just eliminating the terminals. So here just see A to AB.
ए टू ए बी इज देयर, सो इन दिस केस ए टू ए की जगह हम लोग क्या मान सकते हैं, सी ए, क्योंकि पहले ले चुके हैं। तो जो ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी प्रोडक्शन हमें दे रखा है यहाँ पर, यहाँ दे रखा होता सपोज ए टू ए, तो ऐसा नहीं है उसकी जगह पर हम अपनी तरफ से ए रख देते, नो, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ये क्या करेंगे कि हम अपनी तरफ से कोई भी एक कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, बट हियर वी आर एज्यूम्ड सी ए फॉर ए, that's why a is again, so no need to assume any other variable again and again, है ना। एक बार आपने assume कर लिया a के लिए तो वो आपका रहेगा, ये आपने किया है ना। तो देखो a टू ए बी को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हम, इन प्लेस ऑफ a हम पहले से पता है हम लोग क्या रख सकते हैं, सी ए, क्योंकि आप रख चुके हो एक जगह, तो आपने क्या करा, सी ए रखा और बी एज इट इज रख लिया, ठीक है। दीक्षा क्या बताना पूछना चाह रही है बेटा, कोई भी इसमें क्या है, दूसरा स्टेप क्या था हमारा, रिस्ट्रिक्शन, दूसरा एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल या तो अकेला हो, है ना, तो अलाउ है, अगर टर्मिनल के साथ कोई भी वेरिएबल है तो वो सीएनएफ में अलाउ नहीं है, ये बात तो कंफर्म है। तो अब मुझे यहाँ से टर्मिनल, इसको मैं एलिमिनेट कैसे करूंगा टर्मिनल को, ये देखो इंपॉर्टेंट पार्ट ये। तो टर्मिनल कैसे पता चलेगा आपको कि टर्मिनल कौन सा है, ठीक है। तो टर्मिनल तो ये हो गया स्मॉल लेटर वाला, और ये क्या हो गया, वेरिएबल, ये चीज तो हम लोगों को पता है पहले से। सो हाउ कैन वी एलिमिनेट द टर्मिनल, तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि जो टर्मिनल है इसकी जगह मैं क्या कर दूं, इसकी जगह वेरिएबल पुट कर दूं, है ना। तो अब आपने ए की जगह क्या वेरिएबल पुट कर दिया, सपोज सी ए, तो ये आपको कहीं रखना पड़ेगा ना इसका कहीं हिसाब, कि आपने सी ए की जगह क्या किया, ये ए की जगह क्या किया, सी ए, तो मतलब एक प्रोडक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा कि सी ए टेंस टू ए। तो मैंने अगर ऐसा कर दिया तो मैंने ये टर्मिनल यहां से हटा दिया, और इन दिस प्लेस हमने क्या कर दिया, वेरिएबल ले आए। तो अब क्या हुआ, ये वेरिएबल आ गए, टर्मिनल यहां से गायब हो गया। तो यही हमें चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें इसकी लेंथ भी कम करनी होगी, तो लेंथ हम आगे कम करेंगे। अभी हमारा काम ये था कि जो टर्मिनल था उनको एलिमिनेट करना। सिमिलरली इस स्टेप को देखो, इसमें भी क्या है, ए बी, तो अब हमें इसको हटाना है, तो हटाने का मतलब क्या है, ऐसे तो हटा नहीं सकते, क्या करें, इन दिस प्लेस वी विल पुट ए वेरिएबल। तो सिंपल वेरिएबल का नाम क्या है, ए प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया सी ए के नाम से और वो प्लेस कर दिया इसकी, तो ये प्रोडक्शन हो गया। फॉर्चुनेटली हियर द लेंथ ऑफ वेरिएबल इज 2, देखिए कितने वेरिएबल है, केवल सी ए बी, तो इसको ऐसे मत काउंट करना, सी ए बी, दिस इज ऐसे लिखना है आपको, सी ए बी, सो देयर आर 2 वेरिएबल्स, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका सीएनएफ की फॉर्म में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया, राइट। अब इसकी बात करते हैं, तो ये बी ए बी गिव राइज टू, अब बी वेरिएबल आपको ऐसा नहीं आगे जाके कैपिटल बी लिख दो कि ये तो सर दे रखा था, नहीं, आपको खुद एक एज्यूम करना है। तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं इसकी जगह, ए के लिए हमने सी ए एज्यूम किया था, तो बी के लिए क्या एज्यूम कर लें, सी बी, तो हमने क्या लिखा, सी बी ए बी एज इट इज जो दे रखा है वो, वेयर सी बी बिलोंग्स टू या सी बी टेंस टू व्हाट, बी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ ये वाला तो सीएनएफ में है, ये वाला भी सीएनएफ में है, अब इन दोनों में प्रॉब्लम है, इस वाले में और इस वाले में। क्या प्रॉब्लम है कि इनकी टर्मिनल तो यहां से चला गया, बट इसकी जो लेंथ है वेरिएबल की, इट इज मोर देन डिसाइडेड, दैट 2 से ज्यादा है। सो नाउ वी हैव टू अप्लाई द स्टेप 3, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ वेरिएबल, रिस्ट्रिक्शन ऑफ लेंथ, ये कह सकते हो, on the variable. So now we will try to reduce the length, we will try to restrict the length. Now see here, अब देखो टोटल प्रोडक्शन क्या आ गए आपके P1 में, इसके बाद जो टोटल प्रोडक्शन आए वो क्या आए, पहले के करने के बाद सारे एक जगह लिखने होंगे आपको। तो P1 मतलब पुराना प्रोडक्शन रूल ये दे रखा है, और आपने पहला स्टेप अप्लाई कर दिया। पहला स्टेप अप्लाई करने के बाद आपके नए P1 हमारे प्रोडक्शन रूल क्या आ गए, एस क्या आ गया, सी ए डी सी ए टू ए, देखो एस ये आ गया, ए क्या आ गया, ए को देखो क्या लिखा आपने, सी ए बी, और क्या आ गया, सी बी ए बी, तो सी बी ए बी, बी टू बी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी टू डी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नए क्या आ गए, सी ए टू ए और सी बी टू बी। तो हमने ये सारे यहाँ पर, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, ये सारे आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें ये देखेंगे कि कौन से प्रोडक्शन कन्वर्ट हो गए सीएनएफ में और कौन से अभी रह गए। तो जो कन्वर्ट हो गए उनको सीधा हमारा फाइनल सेट क्या है, P2, क्योंकि P हमारा दे रखा था, P1 पे हमने पहला अप्लाई किया और P2 हमारा फाइनल होगा।
तो अगर हमारा कोई भी प्रोडक्शन रूल कंप्लीट हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है सीएनएफ में, उसको हम डायरेक्ट P2 में ट्रांसफर करते चलेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें अकेला टर्मिनल है, इसमें अकेला टर्मिनल है, इसमें अकेला टर्मिनल है, इसमें अकेला टर्मिनल है, इसमें 2 वेरिएबल है। तो देखो ये कन्वर्ट हो गया, ये वाले कन्वर्ट हो गए, ये वाला भी कन्वर्ट हो गए, ये वाला भी कन्वर्ट हो गया। केवल रह कितने गए, एक ये वाला रह गया, एक ये वाला रह गया। तो जो हो गए सारे उनको हमने लिख दिया एडेड टू P। ये बात समझ में आ गई। अब कौन से रह गए, F टू CA AD और दूसरा रह गया A टू CB AV। तो ये 2 रह गए, ये एक F का रह गया, एक A का रह गया। So now we can replace it or we will try to reduce the length of the variable. So see here, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी लेंथ को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो रिस्ट्रिक्ट क्या करेंगे, इसको, ये वाला तो आपने एज्यूम किया हुआ था CA, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड इधर राइट से देखो आप, राइट टू लेफ्ट, इन 2 वेरिएबल को मैं क्या करता हूं, इसका कोई भी एक नया नाम दे देता हूं। आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो एडी को मैंने अगर C1 मान लेता हूं, तो मेरा नया प्रोडक्शन रूल क्या बन जाएगा, CA टू CA C1, राइट। देखो इधर इसकी जगह मैंने क्या रखा, C1। तो आप क्या करा, F टू CA और C1, जहां C1 किसको माना आपने, AD को, C1 माना आपने AD को। तो देखो AD 2 वेरिएबल आ गए, ये भी वैलिड है, रिक्वायर्ड फॉर्म में है। और ये जो हमारे 3 वेरिएबल आ रहे थे, दीज वेरिएबल्स आर, द लेंथ ऑफ दीज वेरिएबल्स आर रिस्ट्रिक्टेड इनटू 2। सिमिलरली इसकी अगर मैं बात करूं तो CBAB, तो इसमें भी आपने क्या किया, इस AB को कुछ भी मान लो, C2 मान लो, तो क्या आ जाएगा CBC2। तो ये लेंथ कितनी हो गई, 2, वैलिड है। और C2 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, AB, तो इट इज ऑल्सो वैलिड। तो अब फाइनल आपको लिखनी पड़ेगी ग्रामर आप इन द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म आफ्टर अप्लाइंग ऑल द स्टेप्स। तो फाइनल ग्रामर में कैसे लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या लिखते हैं, वेरिएबल का सेट, फिर क्या लिखते हैं, टर्मिनल का सेट, फिर क्या लिखते हैं, प्रोडक्शन रूल, फिर क्या लिखते हैं, स्टार्ट सिंबल। तो अब देखो BN वेरिएबल के सेट देखो क्या क्या वेरिएबल है आपके। तो F A B D ये तो पहले से थे, नए आपने क्या क्या वेरिएबल लिए, एक तो CA नया लिया, एक आपने CB नया लिया, एक आपने C1 नया लिया और एक आपने C2 लिया। तो जस्ट राइट ऑल दीज। तो देखो यहाँ पर CA CB C1 C2 सब आ गए। टर्मिनल देखो क्या क्या है, स्मॉल a है, स्मॉल b है और स्मॉल d है। देखो आप कहीं से भी देख लो, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल d। तो जस्ट राइट हियर सिग्मा पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा हो गया, ये वाला पार्ट पूरा हो गया। नाउ P2 इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्शन रूल। तो इसको हम डिटेल में लिखेंगे क्योंकि एक तो होगा नहीं प्रोडक्शन रूल, इट इज द सेट एक्चुअली। तो इसको हम डिटेल में लिख देंगे। और S हमारा क्या है, स्टार्ट सिंबल, बिकॉज इट इज गिवन टू अस। तो हमने यहाँ S लिख दिया, ग्रामर डिफाइंड हो गई। P2 रह गया, वेयर P2 इज, अब सारे प्रोडक्शन एक जगह पर लिखे जाएंगे और इन प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें बंद करना पड़ेगा। और एग्जामिनर जब भी एग्जाम में चेक करेगा तो इन प्रोडक्शन को चेक करेगा। अगर आपका एक भी प्रोडक्शन इसमें मिस हो गया तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको बहुत केयरफुली लिखें, इसीलिए मैंने आपसे कहा पहले लिखते जाओ, जो जो कन्वर्ट होते जाओ उन्हें एक बॉक्स में रखते जाओ और लास्ट में सारे प्रोडक्शन रूल को हम कॉपी कर देंगे, राइट। सो हियर यू कैन राइट CA-C1 ये आ गया, और ये क्या आ गया, C2 CB-C2 CB-C2 और A के दूसरा क्या क्या है जो पहले से कन्वर्ट हो चुके थे। देखो मैं लिख चुका हूं यहाँ पर CBA और A का कोई है नहीं है, तो इनको आप लिखते जाओ इस जगह। फिर क्या है, C1 क्या है, AD, C2 क्या है, AB, ये भी लिखे जाएंगे। A क्या है, स्मॉल B क्या है, स्मॉल B, D क्या है, स्मॉल D, CA क्या है, स्मॉल A, CB क्या है, स्मॉल B। सारे प्रोडक्शन रूल लिख दिए। दिस इज द सिंपल ग्रामर and all the production rules are in Chomsky normal form. अब कोई भी डाउट है तो पहले डाउट पूछिए, कोई भी अगर डाउट, बहुत इजी है, बस यू हैव टू फॉलो ऑल द प्रॉपर स्टेप, कोई चीज भूलो नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको इसको करना है, एंड देन यू विल डेफिनेटली फाइंड द करेक्ट आंसर। सो नाउ यू कैन नोट डाउन, आप इसे नोट कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर आफ्टर। अब अगर आपसे कोई कहता है कितने प्रोडक्शन है, जैसे मान लीजिए कोई आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, मैंने आपको ये दिया और आपसे मैंने पूछा आफ्टर कन्वर्टिंग दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू CNF हाउ मेनी प्रोडक्शंस विल बी देयर, केवल ये आंसर है। तो आप यू मस्ट हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन यू कैन वेरीफाई द आंसर। तो आप कैसे देखोगे, एक प्रोडक्शन रूल ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so total number of productions will be 9. Are you getting my point? चीज समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा प्लीज। ओके उन्नति, थैंक यू। तो 9 हो गए, अब बताओ आगे।
आपने कुछ और पूछा अभी पवनेश, बी ए इसको लेना चाह रहे हो, आपने कुछ लिखा है अभी, जस्ट ए मिनट, आपने लिखा बी ए ले सकते हैं क्या, बी ए कौन सा है, बी तो कहीं दिख नहीं रहा बेटा मुझे। पवनेश क्या कहना चाह रहे हो बेटा, एक बार बताओ जरा दोबारा से। हमेशा कोशिश करेंगे, देखो इसका रीजन ये है, हम आगे की और भी नॉर्मल फॉर्म्स को देख के चलेंगे, इसको एज्यूम नहीं करेंगे कभी भी, इसको एज्यूम नहीं करोगे, ठीक है ना, इसको एज्यूम मत करो, कोशिश करो जो नया चीज है उसको एज्यूम करो, क्योंकि ये तो आपने खुद ही एज्यूम किया हुआ है, तो इसको अगर आप एज्यूम करने लगोगे तो लेफ्ट रिकर्सन की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमेशा एज्यूम करो इधर वाली साइड, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। और ये सी और बी ऐसे मत समझ लेना, ऐसे मत लिख लेना, फिर आप मुझसे कहो कि सर ये तो आपने गलत करा दिया, दिस इज नॉट सी बी, दिस इज सी बी, एक है ये, राइट, दिस इज ए सिंगल वेरिएबल, ऐसा मत लिखना इसको कि सी अलग लिखो आप और बी अलग लिखो नोट करते टाइम, ठीक है। तो अब एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, एक क्विज भी कराऊंगा अब नेक्स्ट वीक में, मोस्ट प्रोबेबली या इसी वीक के एंड तक मैं कोशिश करूंगा बिफोर दिवाली वेकेशन। तो उस क्विज में अब हमारे पास काफी क्वेश्चंस हो गए, मैं आपको नल पूछूंगा, एलिमिनेशन यूनिट पूछ सकता हूँ, नॉर्मल फॉर्म पूछ सकता हूँ, रिडक्शन पूछ सकता हूँ, डेरिवेशन ट्री पूछ सकता हूँ, एम्बिग्यूटी पूछ सकता हूँ। तो ये हमारा सिलेबस भी थोड़ा सा बड़ा है और हम लोगों को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, ठीक है ना, तो आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करें। दोनों सेम नहीं ले सकते बेटा पवनेश, दोनों नहीं ले सकते, अगर आपने ए को ले लिया है मान लीजिए सी ए, तो अब ए को सी भी नहीं लोगे, समझ में आ गया, सी बी को तुम बी ले सकते हो, सी को ले सकते हो, या बी को तुम्हें लेना है तो सी एक्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, अगर आपने ए को सी ए ले लिया तो फिर ए को फिर सी भी नहीं लोगे, क्लियर, क्योंकि अननेसेसरी आप क्या करोगे उस केस में, गलत इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके अननेसेसरी नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज होंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। जब आपने एज्यूम कर लिया, ए को जब आप टर्मिनेट कर रहे थे तो आपने क्या किया कि ए को रिप्लेस कर दिया वेरिएबल से, उसका नाम दे दिया सी ए, तो सिंपल, अब आपको क्या करना है, ए दोबारा अगर आपको एज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी वेरिएबल की फॉर्म में, नाउ अब आप नया वेरिएबल नहीं लेंगे, उसी को रिपीट कर दीजिए, क्लियर। सो आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, आप लोग उनको जरूर करें प्रैक्टिस के लिए, और कोई भी डाउट आता है तो कल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सो जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, and you have to convert the given context free grammar into Chomsky normal form. Just note down this question and solve. We will match the answer tomorrow. So this is for your homework. हो गया? So tomorrow we will discuss the answer of this Chomsky normal form, and we will try to start a new normal form, if your doubt is, if you permit, new normal form, that is Greevac normal, GNF. Okay, thank you for attending the class.